If I were to ask you a small question, what do you think are the most relevant skills in this day and age for your career or job? Well, I'm not talking about the hard skills. I'm not talking about skills that are related to your technical aspects or your functional aspects. I'm talking more about skills that can help you propel in your career and do bigger things in life. What do you think would those skills be? इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे 5 स्किल्स शेयर करूंगा जो मुझे लगता है कि आज के डे एंड एज के प्रोफेशनल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये स्किल्स ऐसे स्किल्स हैं, दीज आर एवरग्रीन स्किल्स, दीज आर ग्रोथ स्किल्स व्हिच कैन हेल्प यू मूव योर करियर अहेड. सो टू नो दीज स्किल्स, इस वीडियो में बने रहिए ऑन द अदर साइड ऑफ द इंट्रो. प्रॉब्लम सॉल्विंग ऐसी स्किल है जो कि एक मोस्ट सॉट आफ्टर स्किल मानी जाती है. सी, मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन कंपनीज कम टू कैंपस एंड देन दे हायर बेस्ड ऑन योर डिग्रीज एंड व्हाट यू ब्रिंग टू द टेबल. तो उस टाइम पे बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो ये देखती हैं कि क्या आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है कि नहीं. व्हेन यू से सो, what I feel is when you look at a problem solving ability, it is more about your attitude. क्या आपके पास अगर एक प्रॉब्लम आता है तो आप सीधा दौड़ के आपके मैनेजर के पास चले जाते हो कि भाई मेरे पास ये प्रॉब्लम आ गया, मैं क्या करूं, या आप उस प्रॉब्लम को एनालाइज करके 2-3 ऑप्शंस निकाल के फिर आप अपने मैनेजर के पास जाते हो कि ये प्रॉब्लम है और इसके ये 2-3 सोल्यूशंस हैं, व्हाट डू यू थिंक इज द राइट वे. आप दोनों में अप्रोच का डिफरेंस देखो. पहले में यू टेक द प्रॉब्लम एंड यू रन क्राइंग टू योर मैनेजर. इन द सेकंड यू आर एक्चुअली एनालाइजिंग एंड कमिंग अप सॉल्यूशंस. एंड what do you think the manager is going to appreciate? Whom do you think is going to be more appropriate for the situation? Of course, the person who comes up with the solutions as well. Not necessarily the best solution, but at least that person has tried. So ये होती है एक problem solving attitude या एक problem solving mindset. There are many problem solving techniques, जैसे solution oriented technique हो गया, जैसे hypothesis based technique हो गया, जैसे इशू ट्री बेस्ड टेक्निक हो गया. ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स होते हैं जो आप यूज कर सकते हो. एंड आई वुड रिकमेंड कि आप इनको पढ़ो और इनको इंटरनलाइज करो एज मच एज पॉसिबल. मैंने भी वीडियोस बनाई हैं, यू कैन गो एंड वॉच इन माय चैनल अबाउट दीज प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स. कम्युनिकेशन स्किल. लॉट ऑफ पीपल विल टेल यू कम्युनिकेशन स्किल इज एब्सोल्युटली इम्पॉर्टेंट. उसमें आपकी फ्लुएंसी, एक्यूरेसी, आर्टिकुलेशन, ये सारी चीजें आती हैं. Absolutely no debate on that. But I want to emphasize on a very different aspect of communication. Communication जो है वो आपके लेवल के साथ चेंज होती रहती है. How you communicate as an entry level professional is different from how you will communicate as a middle level professional, and then absolutely how will different from how you communicate as a leader. For example, अगर एक कंपनी में क्राइसिस होती है जिससे कि जॉब जाती है, then it is a leader who has to come to the front and do a crisis level communication. This kind of communication is generally not done by an entry level professional. So what I'm trying to tell you is you need to understand how you are going in the communication ladder by itself. So जैसे ही आप start करते हो, maybe it is more around how you write emails, how you talk, those kinds of things. Mid level manager में it is mostly about how you are communicating with your team members, with your people who are above you, managing the optics, those kinds of communication. And as you grow up and become leader, it becomes more around storytelling, more around executive presence, more around the different specialized communications that needs to happen at a leadership level. So what I want you to do is I want you to appreciate how communication ladder itself happens, which is in कंजंक्शन विथ हाउ योर करियर ग्रोस. अगर आप ये चीज समझ जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हर लेवल पे किस तरह की कम्युनिकेशन स्किल्स ग्रो करनी आपके अंदर में जरूरी है. एक बहुत ही ट्रिवियल सा स्किल है विच इज बेसिकली पंक्चुअलिटी, और मैं इसको कभी कभी प्रोफेशनलिज्म के साथ भी इक्वेट करता हूँ, सिनोनिमस करता हूँ. पंक्चुअलिटी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. पंक्चुअलिटी डजंट मीन टर्निंग अप ऑन टाइम, विच इट मीन्स, बट पंक्चुअलिटी मीन्स अ लॉट मोर थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर किसी को टाइम दिया है कि चलो 5 बजे मिलते हैं, देन इफ यू आर गेटिंग लेट,
punctuality also means that telling that person that yes, I am getting late, can you wait for me, or if I cannot make it, then can we cancel this meeting, and this communication has to be done much prior in advance. तो ये सारी चीजें जो है ये सब पंक्चुअलिटी के अंदर आती हैं, जहाँ नॉट ओनली यू रेस्पेक्ट योर ओन टाइम, यू रेस्पेक्ट अदर्स टाइम। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोफेशनल स्किल है, अगर आपने इसको मास्टरी कर ली तो आप मतलब एक बहुत ही प्रोफेशनल की तरह माने जाओगे। यू विल बी वन ऑफ दोस टॉप नॉच प्रोफेशनल्स इन योर कंपनी, इन योर ऑर्गेनाइजेशन। नेटवर्किंग, आई कांट एम्फसाइज दिस मोर, इट इज सच एन इम्पॉर्टेंट स्किल कि आप कैसे नेटवर्क करोगे। प्रिंसिपल्स ऑफ नेटवर्किंग, सबसे पहले तो ये मान लीजिए कि यू हैव टू नेटवर्क विथ योर हार्ट। यू शुड नॉट लुक एट पीपल एज अपॉर्चुनिटी कि भाई ये आदमी, इसके साथ में नेटवर्क कर लेता हूँ, ये मुझे बाद में जॉब दे देगा, या इस आदमी के साथ में नेटवर्क कर लेता हूँ, ये बाद में मुझे क्लाइंट दे देगा, ये खुद ही क्लाइंट बन जाएगा। यू शुड नॉट नेटवर्क विद दैट माइंड सेट, यू शुड नेटवर्क सो दैट यू एक्सचेंज वैल्यूज। नंबर 2 प्रिंसिपल ये है कि आप टेबल पे क्या लेके आ रहे हो। मतलब हो सकता है आप नेटवर्क करना चाहते हो लेकिन सामने वाला आपके साथ क्यों नेटवर्क करे। सो अंटिल यू ब्रिंग योर वैल्यू टू द टेबल, द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू मे नॉट बी रेडी टू नेटवर्क। सो इन चीज़ों का ध्यान रखिए और नेटवर्क को नर्चर कीजिए। मतलब ऐसा नहीं कि आपने लेट से लिंक्डइन पे किसी को इनवाइट भेज दिया बट आप उसके बाद कोई फॉलो अप नहीं करोगे, नॉट कमेंटिंग इन हिज पोस्ट, यू आर नॉट लाइकिंग हिज पोस्ट। ऑफ कोर्स यू हैव टू लाइक द पोस्ट, I mean you have to really like the post to like the post, but what I'm trying to say is you're not engaging with the person. Then what happens is this networking is not really warm, it goes cold, और फिर ये कोई काम का network नहीं है other than just a connection. So try to be more mindful when you're networking, and that's when you will see real things unfolding for you. Analytical skill जो है वो बेसिकली आज के डेट में हम जब काम करते हैं we deal with a huge quantity of data. सो एनालिटिकल स्किल मेरे हिसाब से ऐसा है कि जिससे आप इस डेटा को एक मीनिंगफुल तरीके से समझ पाएं और इसमें से इंसाइट ड्रॉ कर पाएं। समटाइम्स यू हैव टू बी वेरी डिटेल्ड, समटाइम्स यू हैव टू ब्रिंग दैट अप्रोक्सीमेशन। तो इफ यू डेवलप द राइट एनालिटिकल स्किल्स यू विल बी एबल टू मेक दैट ट्रेड ऑफ एंड ब्रिंग अबाउट द रियल इंसाइट्स दैट्स रिक्वायर्ड इन ए टाइम बाउंड वे। सो ये कुछ मेरे 5 पॉइंट्स थे, 5 स्किल्स थे विच आई फील कैन हेल्प यू मेक योरसेल्फ द टॉप प्रोफेशनल इन योर प्रोफेशन. So I hope you liked the video. In case you liked it, give it a like, share and subscribe, and do subscribe to this channel, and thank you so much for watching this today. Thank you.